Assalamu alaikum dear students. Good morning my dear students of class 10A and 10B. And once again warmly welcome to my dear students, for all of you a good message of hope and goodwill that once again we connect our relation or a link of studies with us we drop here. Last time जैसे कि आप लोगों ने देखा in the previous lecture we discuss about the South Asian role of countries with the relation with Pakistan, with the South Asian countries, what about the role of their achievements, development, relation with the Prime Minister to Prime Minister, President to President. Okay, now we chapter is same is here, chapter number 6. It's the chapter number 6 of the class 10, and the topic is there Pakistan in world affairs. So world affairs में आज का हमारा topic बहुत important है, both of two topics, Pak America relations and Pak Russian relation. Okay, keep in mind Pak America relation and Pak Russian relation. Page number 42. And Pak America relations. Please take your highlighter part, underline to the MCQs and the most important targets for the short questions too. Okay. Number 1 PowerPoint. Pak America relation. Pakistan or USA. Pakistan relation with USA, United States of America, UK, United Kingdom, Britain relation, and European Union, EU, European Union, Russia and Japan. Okay. What about the Pak America relations? Number 1. The American ambassador presented when Pakistan came into being, at the first time the ambassador of America just gave his the statement, message of peace, of hope or a goodwill to the Quaid-e-Azam, at that time the Governor General of Pakistan in 1948. He gave an assurance for the mutual relationship from the both of countries, from America and from Pakistan, both of countries, a good time to given them as a peaceful friendship relation, and said that we are only accept friendship and goodwill from all independent nation. It's one of the good PowerPoint start point of Pak America relation at the time of independence. Okay, number 2. On the invitation, at the same time, in the same year, the invitation दावतनामा हमें मिलता है from the American president at that time, the man in Pakistani Prime Minister Liaquat Ali Khan. As you know very well, first Governor General of Pakistan was Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and who was the first Prime Minister of that time, Mr. Rana Liaquat Ali Khan. So, Prime Minister to Prime Minister arranged, and the President that time, the man on from America, given a warmly invitation to Pakistani Prime Minister Mr. Liaquat Ali Khan. Liaquat Ali Khan accepted this invitation and he moved America in 1950. Underline the time tenure and the Prime Minister name. Liaquat Ali Khan, through his speeches, Liaquat Ali Khan was a dynamic person. He was a good oriented debater. So he just moved whenever America, and just he established through link establishment of development and other projects at that time. He explained through his speeches what about the purpose of Pakistan creation, what about the concept of two-nation theory, what about the major purpose of that. We just want to get it from the British and Indians there. Liaquat Ali Khan, through his speeches in America, explained the major objective purpose of creation of Pakistan and the needs of development. Underline it please. This vision was very successful, keep in mind, and America extended military and financial help to help Pakistan. This is the time then Pakistan is giving the first financial aid and the military co-op relation with the America and Pakistan, which was used in the development and construction. This both the projects is used for the development of Pakistan and for the good construction in Pakistan too. Number 3 point, an agreement. Agreement कहते हैं माहिदे को. An agreement of the cooperation. Cooperation कहते हैं ताउन को. Between two countries as a representative from America and Pakistan once again started in 1955. From both of the countries, representatives met with one another, table talk, discussion. As a PowerPoints, they discussed at that time different development and projects related to the Pakistan prosperity and Americans' goodwill too. According to which the President of Pakistan at that time, Muhammad Ayub Khan, at that time you read about Muhammad Ayub Khan in detail in grade 9 and a little bit introduction in grade 10 too. Muhammad Ayub Khan, as you know, was the Chief of Army Staff, Commander-in-Chief, and as well as the President of Pakistan. He just warmly accepted this invitation through the at that time the President Kennedy. Keep in mind, American old, and I just talk about the pre-history of the American president in the golden repeat time of the America. That's what the president, lead president, which play one of the vital and key role with a good relation with Pakistan, and Kennedy, Reagan. These are the both two person, and Bill Clinton too. These are the president in America
who played one of the vital role for the development and prosperity and the good mutual relation understanding with Pakistan. Candy is one of the greatest, you say the president, इसको मार दिया गया था और basically he is one actor too. ये वहाँ की हॉलीवुड मूवीज का बहुत बाकमाल एक्टर भी रहा. He played one of the vital role with Sophia Loren and Elizabeth Taylor too. If you want to know the biography of the Candy, ex-president of America, about his great information regarding his acting and regarding his presidentship of America, you read encyclopedias, books and different resources for internet. Okay. Candy at that time President of America personally warmly welcomed to Mr. You say Ayub Khan and warmly welcomed to Ayub Khan, and he discussed different topics discussion with President Kennedy and explained Candy K. जैसे कल मैंने कैंडी बताया था, उसका सिंगापुर का शहर है, कोलंबो उनका कैपिटल है ना, तो कैंडी के से कैंडी. And he explained Pakistan's stand of Kashmir issue to him. A joint committee at that time, commission is kind there, issued there, and America showed the Pakistan resistance for second. क्योंकि आपने पढ़ा था 9th में कि अयूब खान साहब जो थे, इनका जो टेन्योर था 5 years plans का, जो उनका प्रोजेक्ट्स हैं डिफरेंट गोल्डन ईयर्स के बारे में आपने पढ़ा था. इससे रिलेटेड इंस्पायरेशन उनको मिला, इन्फ्लुएंस मिला अमेरिकन गवर्नमेंट को, उनके ये डिस्कशन करने में आसानी हुई, इसके लिए उन्होंने इसको कमिट किया और ज्वाइंट एक कमीशन बना जो डिस्ट्रिक्टली दोनों कंट्रीज के एक पावर पॉइंट्स को मैच करता है. It also showed that it's all alliances, इसके तहादी जो थे, alliance forces के बारे में आपने पढ़ा, allies इसके तहादी would be convinced to do the same, उनको भी ऐसा करने को कहा. America repeated its promise once again. America repeated its promise for the development and construction, but for the military and financial aid too. The international border, you read about the date line of recognition of the border between the Pakistan and India. सर the date line के बारे में मैंने previous lectures में भी explain किया हुआ है, in grade 9 में भी बताया हुआ है सर the date line का. So that's why इस matter को भी अमेरिका ने recognize किया as a direction given. Number 4, Russia. At that time, you know very well, Russian forces attack on Afghanistan. और this is जो पॉइंट था, इसको इवन पाकिस्तान ने जैसे सेट नहीं किया था, अमेरिका ने भी नहीं किया था. अमेरिका वाज टोटली आल्सो भी अगेंस्ट दिस स्टेप फ्रॉम दिस टेकन दैट टाइम फ्रॉम रशिया. ओके, रशिया एंटर्ड इट्स फोर्सेस इनटू अफगानिस्तान एंड ऑक्युपाइड अफगानिस्तान इन 1979. अंडरलाइन दिस पॉइंट. पाकिस्तान, जब हरकतुल मुजाहिदीन ने बहुत इसमें की रोल किया, पाकिस्तान ने अमेरिका ओपनली अपोज्ड खुल्लम खुल्ला अलग किया कि दैट्स रॉन्ग, कि इसके लिए देखिए जिया साहब ने उस दौर में अपने अफगान महाजरीन के लिए, रिफ्यूजीज के लिए अपने बॉर्डर्स को ओपन किया. ओपनली जो अफगानी महाजरीन थे, मैन, वुमेन, ओल्ड पीपल, यंगस्टर, चिल्ड्रन, उनको आने दिया कि इन बच्चों को आने दी, ये हमारे भाई हैं, मुस्लिम ब्रदर्स हैं. सो सेम थिंग्स विद अमेरिकन ने भी पाकिस्तान का सपोर्ट किया और इसके लिए ओपनली अपोज किया, किसको, रशिया को. और उसके बाद पाकिस्तान ने अमेरिका और अदर वेस्टर्न कंट्रीज आल्सो भी हेल्प, और यही एक वजह थी कि हमारा लैंड रूट चूंकि अफगान बॉर्डर के साथ मिलता है, सो दैट्स व्हाई अमेरिका ने उसका सपोर्टिव मेंबर बनते हुए बाकायदा तौर पे लैंड के की रूल्स को आगे सप्लाई भिजवाए, इसके थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू, उसको को ज्वाइंट करके उसके रिलेशंस को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू अफगान रिफ्यूजीज की मदद के लिए, उनके लिए. ड्यू टू द पाक अमेरिकन ज्वाइंट एफर्ट्स, ये इनके मुश्तरका एफर्ट्स थे, रशिया कुड नॉट विन, एज यू नो, रशिया कुड नॉट विन दिस वॉर. उसको मुंह की खानी पड़ी और हरकतुल मुजाहिदीन ने उनका बहुत ज्यादा डट के मुकाबला किया. And it had to withdraw its forces from Afghanistan. और मजबूरन एट द एंड रशिया को अपनी फोर्सेस को अफगानिस्तान से रिमूव करना पड़ा, कॉल बैक ऑर्डर मिले. नंबर 5, ऑन द इन्विटेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रेगन, नेक्स्ट टर्म आ रहा है रेगन, वहां के बहुत बाकमाल प्रेसिडेंट रहे. जनरल जियाउल हक एट दैट टाइम इज आल्सो द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड प्रेसिडेंट पाकिस्तान go there, visited at that time at the call as invitation from the Reagan in December 1982. Both countries agreed by the setting up. ये टाइम था जब जिया साहब के टेन्योर में बाकायदा तौर पे एटॉमिक वेपन्स पे, एटॉमिक पावर पे, F-16 के ऊपर बाकायदा डिबेट हुई और अमेरिका ने हमारे साथ इस मैटर को डिस्कस करते हुए हमें F-16 की सप्लाई को दिया. ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्रेडिट को जाता है और इसी से इंस्पायरेशन बाद में इंडिया को मिला. रशिया ने उनको सपोर्ट, क्योंकि पहली सुपर पावर रशिया था, लेकिन जंग के बाद उनकी जैसे जैसे उनकी स्टेट्स अलग हुई, वो बिल्कुल अपना डेप्रीवेट होता गया, जिस वजह से उनका ये नंबर ऑफ लैक वर्ल्ड में कम हुआ. सेटिंग अप मिनिस्टर्स कमीशन, इन्होंने एक मिनिस्टर्स का कमीशन का, इनके नॉमिनेटेड मिनिस्टर्स का जिया साहब की बाकायदा तौर पे
डिस्कशन के बाद इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ F-16, फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एयरक्राफ्ट वाज सेंट टू पाकिस्तान भेजा गया। इंडिया एंड रशिया इन रिस्पॉन्स एट दैट टाइम, इनके जवाबन आल्सो साइन, इन दोनों कंट्रीज ने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रिलेशंस को मद्देनजर रखते हुए साइन किया इन 1983 में। एंड रशिया प्रोवाइडेड द मोस्ट मॉडर्न वेपन, एंड रशिया एट दैट टाइम provided most modern weapon according to that time, like tanks and anti-tanks aircraft to India. ज़ाहिर है कि इंडिया भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब घबरा गया कि ज़ाहिर है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 जैसे जो तैयार है वो दिया है इंस्टॉलमेंट में। इसी तरह जब उन्होंने अपने रिलेशंस को रशिया के साथ डिविलिटी दी तो रशिया से उन्होंने क्या लिया। नंबर 6, अमेरिकन दैट टाइम द सेनेट बिल पास इन 1985, अंडरलाइन इट प्लीज। ये सेनेट बिल जो अमेरिकन जो है जो मतलब कि उनका वहाँ का पार्लियामेंट उसने इसको सेनेट ने इसको अप्रूव किया, विच डिस्कनेक्टेड एड टू द पाकिस्तान द डेवलपर न्यूक्लियर वेपन, जिसको एड को न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलपर्स को उन्होंने डिसकंटिन्यूड कर दिया, खत्म कर दिया। अमेरिकन प्रेसिडेंट लिमिटेड पाकिस्तान फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द ईयर एंड एट दैट टाइम पाकिस्तान लिमिटेड फ्रॉम दिस अमेंडमेंट इन द फ्यूचर वाज रिसीविंग एवरी ईयर। एट दैट टाइम व्हेन जनरल ज़ियाउल हक न्यूयॉर्क जाते हैं, विजिट करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर विजिट होते हैं। हम मनसब अपने ओहदे पे उन लोगों को ज़रूर बुलाते हैं जब कोई मुल्क में कोई नेशनल सेलिब्रेशंस का इफ्तिताह होता है या कोई सिलसिला। जैसे ये अमेरिका की 40th एनिवर्सरी थी, यानी 40 साल हो गए थे अमेरिका को बने हुए, तो अमेरिका ने बाकायदा तौर पे पाकिस्तान में इन्विटेशन भेजा। न्यूयॉर्क में बाकायदा तौर पे ज़िया साहब इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करके जाते हैं वहाँ पर, और ज़िया साहब की वहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं उनसे बाकायदा तौर पे मुलाकात होती है। एज एनिवर्सरी पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, प्लेस न्यूयॉर्क टू पार्टिसिपेट इन द 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन अक्टूबर in 1985। he also met with the American president, और वहाँ बाकायदा तौर पे न्यूयॉर्क में पार्टिसिपेटेड होते हैं कि जो यूएनओ की यूनाइटेड नेशन की 40 साल जो तकरीबात का एक सिलसिला होता है 40 ईयर्स का, उसके अंदर बाकायदा तौर पे अक्टूबर 1985 में ज़िया साहब की मुलाकात होती है अमेरिकन प्रेसिडेंट से, वर्ड टू वर्ड उनके साथ मुलाकात होती है। द प्राइम मिनिस्टर नंबर 7, द प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मोहम्मद खान जनेजो, यू रीड अबाउट द प्राइम मिनिस्टर्स टेन्योर एंड जनेजो व्हेन ही मूव्ड टू द अमेरिका एंड ऑल ऑफ सडन जब वो ओजीडी कैंप का वाकया होता है, जरा थोड़ा सा माइंड में लेके प्रीवियस चैप्टर में आप पढ़ के आए। द प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मोहम्मद खान जनेजो विजिटेड अमेरिका इन 1986। एट दैट टाइम he had also discussion with the president and other senior officials that time, because ये ऐसी डिबेट है जिसको उस वक्त के जो अमेरिका के आला अफसरान हैं वो उनके साथ डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं। An agreement was signed between them and for transfer to the sensitive technology to Pakistan with the condition that technology should not be used for the nuclear program। ये इसका पावर पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर प्रोग्राम पे थोड़े से उनके राइट्स जो है उनको क्लियर किया जाता है। नंबर 8, अमेरिका एट दैट टाइम given us a $3.2 billion underline for the MCQs और पाकिस्तान the next 6 year plan, यानी कि जो 5 years plans के टेन्योर्स को आप देख रहे हैं, यानी कि ज़िया साहब के टेन्योर के में अयूब खान के टेन्योर के बाद ज़िया साहब के टेन्योर के अंदर $3.2 बिलियन की हमें बाकायदा तौर पे एक नेक्स्ट ईयर्स का जो प्लान आता है मार्च 1980। अभी भी आप देखें जब IMF की तरफ से जब हम कर्जा लेते हैं तो जो उसकी शराइत होती हैं, जो उसकी ऑप्शंस होती हैं, वो अमेरिका देता है। कर्जा जितना मर्जी ले लो, लेकिन उसका जो बर्डन है वो अवाम पर आता है, थ्रू यूटिलिटीज के थ्रू टैक्सेस के थ्रू प्रोजेक्ट्स जो डिफरेंट आते हैं उनमें इतना टैक्स आ जाता है, यूटिलिटीज हमें इतने पे करने पड़ती हैं। आप लोग देखें अ ग्रेट पार्ट ऑफ दिस एड वाज रिवर्स फॉर द मिलिट्री। इस एड का ज्यादातर जो प्रोजेक्ट था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो मिलिट्री पे खर्च किया गया। एंड द मार्क ऑफ द इंटरेस्ट रेट शेड्स वाज वेरी लो। द प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान एट दैट द नेक्स्ट टेन्योर्स कम एंड बेनज़ीर भुट्टो, यानी कि आपने ज़िया साहब का टेन्योर पढ़ा था, that के बाद Benazir play one of the vital and key role in this situation. She is just considered as a one good orienter, debater, and no doubt a one of the good democratic leader too in Pakistan. So she play a one of the key role. Why? Because she bring a one of the great change in this continent. हमारे खत्ते में एक ऐसा change Benazir साहब लिखे हैं. She just bring a very closest harmony between the Americans and Pakistani nation and America. She lead a different meeting with a different president, UN leaders, representative in America, their ambassadors. So she brought up one of the vital harmony change, a developed change for us, all of us in Pakistan. So this credit goes to the Prime Minister of Pakistan at that time, Benazir Bhutto, visited America at the end of 1995, and she was known. Underline very good PowerPoint. She was known
as the most popular personality and brought movement a more improvement in the Pak-American relations and ties. इस achievement में बेनज़ीर का बहुत रोल जाता है कि उन्होंने उन तमाम weaknesses को किस तरह डिबेट करते हुए क्लियर किया. Number 9. At the time, the Presidential Amendment, Larry Pasteur introduced the constitutional amendment through aid of all kind of Pakistan was stopped. रोक दी गई क्योंकि मैंने बताया कि डिफरेंट प्रेसिडेंट के डिफरेंट व्यूज थे, डिफरेंट प्रेसिडेंट के डिफरेंट हमारे साथ रिलेशंस अच्छे रहे. जॉर्ज बुश की जो गवर्नमेंट थी बहुत टफ टाइम था, जॉर्ज बुश 1 एंड जॉर्ज बुश 2. इनमें देखें, बाराक ओबामा की आप लोग देखें, स्टडी करके देखें, बिल क्लिंटन के आप देखें 10 ईयर्स के चले हो रहे हैं बाराक ओबामा के, बिल क्लिंटन के, ये कितने क्लोज रहे. क्या वजह थी कि इनका इन्फ्लुएंस क्यों था, उससे प्रीवियस गवर्नमेंट्स का क्यों नहीं था, मौजूदा ट्रंप का क्यों नहीं है, ट्रंप का है तो क्या वजह है. At that time, number 10, Bill Clinton, very good, we see a president in the American history. Bill Clinton approved the Brown Amendment on 26 January 1996. Underline it please, which paved the way of military and economic aid to Pakistan. This amendment was welcomed in Pakistan American Congress on 15 January 1998. Underline it please. Supported the return of money Pakistan F-16 aircraft but not delivered to it. Very major and important point. Number 11, the American Army General John B. Very good point and very most important. According to this PowerPoint, you could be know that. What about the next agreement? The American Army General, at the state of Journal there, John B. accompanied by the delegation to the visit Pakistan for 2 days in 2004. Musharraf साहब के tenure में ये तशरीफ लाते हैं. He met with the President of Pakistan, Mr. Pervez Musharraf, and exchanged the views of counting operation in Afghanistan. क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी होती है कि रिलेशंस को जब डिबिलिटी मिलती है तो उसके दरमियान में कोई ऐसी चीज आ जाती है जो उसका कबाड़ा करके रख देती है. अब पाकिस्तान एक ऐसी स्टेज पे खड़ा था कि जब 9/11 का वाकया हुआ, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ मैनी टाइम इन क्लास इन प्री हिस्ट्री रिगार्डिंग दिस वन, कि 9/11 के उस इंसिडेंट में जब ये वाकया होता है कि आफ्टर दैट एरिया में पहले पॉइंट पढ़ दूं, ही मेट द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड एक्सचेंज, आप चाहें तो नाम लिख लें, जनरल परवेज मुशर्रफ, views of continuing operation in Afghanistan. America signed an agreement with Pakistan with the condition that it would give aid of $270 million. Please underline this aid of time in 2004. $270 million to Pakistan, which would be spent on different development program. For different development of program के लिए aid थी, ठीक है. After the terrorist attack in America on 9/11 2001, ये बहुत important एक strategy इसने पूरे खत्ते को extremely change कर दिया था. America attack Afghanistan, Pakistan supported America in this war, but as a result Pakistan is self facing terrorism. ये एक सीन ऐसा था कि अमेरिका क्या एक सिनेरियो चेंज हुआ जब ये 9/11 का वाकया हुआ और अमेरिका वाइस्ड हो गया कि आई वांट टू बी जस्ट टू कर रिवेंज टू अफगानिस्तान. अफगानिस्तान वो जंग करना चाहता था और जंग के लिए उसको एयर बेस और लैंड रूट्स चाहिए थे. सो दैट्स वाई, चूंकि पाकिस्तान में नेबरिंग कंट्री है हमारा अफगानिस्तान, वहाँ जाना उनके लिए आसान था. इसके लिए हमें मिलियन बिलियन ट्रिलियन रुपीस के हमारे कर्जे माफ कर दिए गए, हमें एड दी गई, हमारे ऑप्शंस को एक्सेप्ट किया गया और मुशर्रफ साहब ने इस चीज़ पे साइन किए. जिसके बाद इसके जो हमें नेगेटिव सबसे बड़ा असर मिला, हमारी अपनी इकनॉमी के लेवल तो लेस स्क्वीज हुई, हमारे मुल्क में टेररिज्म बहुत फैल गया. क्योंकि अफगान मुजाहिदीन ने इस चीज़ का ये आंसर दिया कि कैसे एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई को मार सकता है, उसकी जान ले सकता है. हम तो इनके अगवानी भाई हैं और इन्होंने हमारी जान का सौदा कर दिया. देखिए, व्हाट अबाउट द पुअर इनोसेंट ऑफ अफगान पीपल, रिवेंज इज द वन ऑफ द डिफरेंट थिंग. ये पॉइंट इसको क्लियर करते हैं. फॉर इट्स ओन एम रिपीटली टॉक ऑफ मेंटेनिंग लॉन्ग लास्टिंग एंड कॉर्डिनेटेड रिलेशन विद पाकिस्तान. इन द लास्ट 13 years अमेरिका हैज गिवन लोन्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर, अनलिमिटेड, the billions of dollars. Get now to. In the last 13 years, America has given loans of billions of dollars of Pakistan, and however, it never be given aid for the big project, as in big project of long-lasting economic and defense benefits of Pakistan. मैं इसके की content rules आपको कुछ power points और भी ग्रुप में शेयर करूंगा जो आपके क्वेश्चन को authentically, इसकी लेंथ को, इसके power points को strong बना देता है. इनकी points power point में. Okay, in page number 43 end point. Pak Russia relation, Russia relation. Number 1, diplomatic relations will establish, इसकी बुनियाद रखी between both countries in May 1948. Underline it please. And the next year, Mr. Shoaib Qureshi, the first ambassador who was appointed in Russia, as that time Pakistani ambassador of Russia, even before the appointment of the ambassador on the behalf of the Russian Prime Minister Marshal Joseph Stalin. ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने अपना इन्विटेशन दिया, इंटेंशन दिया
कि अब पाकिस्तान रशिया जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशन को मतलब फर्दर डेवलप करना चाहती है। एट दैट टाइम द सेम प्राइम मिनिस्टर मिस्टर राना लियाकत अली खान साहब को वो इन्विटेशन दिया जाता है और वो एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन क्या रीज़न होती है पढ़ते हैं। had been and the next page 44 had been Pakistani Prime Minister at that time Mr. Rana Liaquat Ali Khan in June 1949 पाकिस्तान के बनने के ठीक 2 साल बाद after 2 years the month of अगस्त का होता है वास्ट जस्टिस इसको एक्सेप्ट किया जाते हैं। और ये दोनों गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी पॉलिसी होती है कि आने से पहले उसका एक मंथ उसका पूरा एजेंडा डिक्लेयर किया जाता है कि पाकिस्तान के क्या मतलब प्रोजेक्ट्स हैं या डेवलपमेंट्स है, किस में उसको डिजायर ऑफ रिक्वायरमेंट चाहिए जो रशिया गवर्नमेंट उसमें उसको सपोर्ट कर सकता है, मंथ कौन सा सूटेबल है, रिप्रेजेंटेटिव्स कितने आने हैं, डेलीगेशंस कितने आने हैं, आपका क्राफ्ट कौन सा आना है, आपके आर्मी से रिलेटेड कितने लोगों ने आना है, आपके मिनिस्टर्स ने कितना आना है, इट्स अ फुल फ्लेज लॉन्ग लास्टिंग प्लान। सो दैट्स व्हाई एक्सेप्ट किया जाता है लियाकत अली खान से और मंथ डिक्लेयर किया जाता है अगस्त का। बट एट द इन द सेम मंथ लियाकत अली खान इग्नोर्ड दैट विजिट एंड मूव टू द अमेरिका। उसी मंथ में लियाकत अली खान साहब अमेरिका चले जाते हैं। इन द सेम ईयर उसी साल जुलाई में एक ट्रेड डेलीगेशन एक तजारत का वफद आता है रशिया से पाकिस्तान। बट दिस वाज द वन ऑफ द डिसअपॉइंटिंग यू से टूर फ्रॉम रशिया डेलीगेशन इन पाकिस्तान। इसका कुछ सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं निकलता ट्रेड एंड मिनिस्ट्री का, वो लोग डिसअपॉइंट होकर चले जाते हैं। सेम थिंग इज मेंशन हियर। द सेम ईयर उसी साल इन जुलाई, इन द मंथ ऑफ जुलाई, अ ट्रेड डेलीगेशन एक तजारत का वफद यहाँ आता है फ्रॉम रशिया केम टू पाकिस्तान and its delegation visit to was almost a failure because there was no agreement decided between both countries कि इन दोनों ममालिक के दरमियान इनिशियल लेवल में स्टार्ट में किसी भी किस्म का कोई भी म्यूचुअल रिलेशन दिखाई नहीं देता। After the Russian invitation, the American president at the Turman also invited the Pakistani prime minister for a visit, which was immediately accepted. इसको accept किया जाता है प्रेसिडेंट तुर्मान की तरफ से। At that time, this step was the gulf was created between Russia and Pakistan, which was not been filled till today. But Liaquat Ali Khan visited America in 1950 and Russia declared Pakistan a biased country। और ये स्टेटमेंट उस वक्त रशियन गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पर दिया कि पाकिस्तान इज अ बाइस्ड कंट्री। ओके, यानी ये हमें एक स्टेटमेंट रशियन जो प्रेसिडेंटशिप है वहाँ से उनकी गवर्नमेंट की तरफ से सुनने को मिला। इसकी डिफरेंट रीजंस हैं, आप नेट पे चाहे तो देख सकते हैं कि लियाकत अली खान साहब के क्या इंटरेस्ट थे या वो रशिया से क्यों उन्होंने इतने रिलेशंस को स्टार्ट में इंपॉर्टेंस नहीं दी। Number 2, in March 1956, in Russia's capital is Moscow. यहाँ सर्दी बहुत होती है। The Pakistani consulate held a function. पाकिस्तानी जो वहाँ पे एम्बेसी है, कॉन्सुलेट है, वहाँ पे एक डिफेंस डे का फंक्शन होता है पाकिस्तान डे के हवाले से, ठीक है, यौम पाकिस्तान के हवाले से। The Russian foreign minister Botwell also participated and offered to Pakistan help set up a steel rolling mill and same way। और उस वक्त वहाँ के जो प्रेसिडेंट है बाकायदा तौर पर उस इवेंट को ज्वाइन करते हैं। ही लाइक दैट फंक्शन, ही लाइक दैट अचीवमेंट एंड द पर्पस ऑफ द एम एंड वेल इम्प्रेस दैट फंक्शन, और वो ऑफर करते हैं एक स्टील रोलिंग मिल्स के लिए। ये वो चीज़ होती है जिससे आपका एक इन्फ्लुएंस जो फर्दर आपको हाईलाइट होता है। बोथ कंट्रीज साइन एन एग्रीमेंट मार्च इन 1961। नंबर 3 पावर पॉइंट, अंडरलाइन द पावर पॉइंट, अकॉर्डिंग टू विच रशिया हैड टू एक्सप्लोर ऑयल इन पाकिस्तान। ये यानी कि उनकी जो ऑयल मिनिस्ट्री है वो चूँकि हमारे पास स्टार्ट में थे रिसोर्सेज नहीं थे, उन्होंने हमें इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दिया कि हम लोग एक प्लान करते हैं, हमारी टीम आपके साथ देगी, लेबर आपकी होगी, हमारे माइंड में पीपल होंगे, दे कुड बी फाइंड द ऑयल रिसोर्सेज इन पाकिस्तान। Russia also accepted that it would send its expert in Pakistan for 5 years to search for gas land too. It's a good opportunity. As a result of this agreement, it helped the lesson of tension created previously to quite extent. After 2 years, air service began between two countries. देखिए जैसे जैसे ऑयल रिसोर्सेज मिले, रिसर्चर्स आए और इसके बाद गैस रिसोर्सेज के बारे में टाइम परफेक्ट किया गया और इसके बाद एयरलाइन सर्विस शुरू हो गई। In 1964, underline the timeline fact, both countries agreed to the technical and scientific cooperation and relation between two countries started improving day by day from the new project. 1965, please underline, it's one of the good PowerPoint. In 1965, the President of Pakistan at that time, Chief of Army Staff and Field Marshal and Commander-in-Chief too, and President Mr. Ayub Khan visited Russia. रशिया के साथ इन रिलेशन में अयूब खान का चूँकि जो गोल्डन आपने एरे पढ़ा हुआ है उसके अंदर सबसे क्रेडिट उनको इसलिए जाता है कि उन्होंने इन फॉरेन कंट्रीज के साथ डेप्थ ऑफ टूर्स में अपने पर्सनल इंटरेस्ट को वर्ड टू वर्ड डिस्कस किया था, जिससे पाकिस्तान को एक तरक्की की तरफ जाने का एक बड़ा एडवांटेज मिला था। वाटर डैम्स बन गए, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट बन गए, कैपिटल चेंज हुआ,
फैमिली प्लानिंग, ये सारे पावर पॉइंट्स के इन सब में डिटेल आप ग्रेड 9 में पढ़ के आए हैं। उसको बार बार बताने की इसलिए जरूरत नहीं कि थोड़ा सा माइंड में बैकग्राउंड फैक्ट को लाया करें कि किसके टर्म में, किसके टेन्योर में इस पॉलिसी फैक्ट को ज्यादा मतलब करें स्ट्रॉन्ग डिविलिटी मिली। These three pacts were signed between the two countries according to which the amount of previous trade was double. Okay, and Russia announced that it would be given a loan for 15 crore to 25 crore. Underline this PowerPoint whole, which I just read. According to a cultural agreement and exchange of a different art, देखिए कल्चर मिनिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और रशिया का कल्चर बहुत अच्छा है। They must be also inspired in Pakistani people too, and Pakistani people also be inspired Russian culture to their art, to their buildings, to their architect, to their language, to their writers, to their script writing, to their costumes, to their language. Different things can inspire us. अगर हम देखें ना कि ये चीज़ें हमें मिलती हैं कि वहाँ के different art experts, underline students, राइटर, ओके, आर्टिस्ट एंड अदर थी रेडियो टीवी प्रोग्राम। जैसे हम इसमें अगर देखें कि चाइना के साथ या टर्की के साथ अगर हमारे रिलेशन अच्छे हैं तो हमारे चैनल्स उनके ऐड दिखाते हैं, ठीक है। दे आल्सो बी कम इन पाकिस्तान टू फॉर शूट फॉर द डिफरेंट स्पॉन्सर्स, डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट। इवन उनके प्लेस दिखाए जाते हैं, हमारे प्लेस वहाँ दिखाए जाते हैं, हमारे टीवी एक्टर्स वहाँ जाके शोज करते हैं, मूवीज फिल्म करते हैं। इट मीन इससे कल्चर मिनिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होती है। जिस इंडिया का मैंने जब आपको टॉपिक पढ़ाया तो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी जो एक्टर्स हैं they just seems to show their intention or influence to the Indian actors, Indian drama artists, Indian writers, Indian singers, Indian folk singers, जिसमें जैसे वो उनको बुलाते हैं, जैसे राहत फ़तेह अली खान है आप देख लें, आतिफ असलम को आप लोग देख लें, ये वो लोग हैं जो वहाँ जाके उनकी कंट्री में रह के इतना फेम नेम लेते हैं और मुँह बोले लाओ उनको पैसे मिलते हैं, वहाँ के डायरेक्टर्स इनको लेते हैं, म्यूजिशियंस लेते हैं, वहाँ के रियलिटी शोज में, नाच शोज में, प्रोमोज में इनको लिया जाता है, एडवर्टाइजमेंट्स में लिया जाता है। इससे कल्चर मिनिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होती है, कल्चर मिनिस्ट्री को अच्छा खासा बेनिफिट होता है और को इंडस्ट्री जो है वो काफी स्ट्रांग होती है। यही वजह है कि रशिया के साथ इन चीजों पर भी फोकस किया गया थ्रू चैनल्स, थ्रू टीवी, थ्रू आर्टिकल्स, थ्रू डिबेट, थ्रू डिस्कशन, टू कल्चर मिनिस्ट्री को स्ट्रांग मिलता है। रशिया आल्सो अनाउंस एड फॉर द थर्ड ईयर 5 प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, अंडरलाइन। नंबर 5, इन जनवरी 1966 आफ्टर इंडो पाक, जब जंग होती है, रशिया ने हमें सपोर्ट किया, चाइना ने हमें सपोर्ट किया, सऊदीया ने हमें सपोर्ट किया। सो दैट्स व्हाई 1965 रशिया ब्रोकन एन एग्रीमेंट बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान इन ताशकंद एंड हेल्प रिजॉल्व द इशू ऑफ द रिटर्न ऑफ प्रिजनर इन ऑक्युपाइड एरिया। कि ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन था कि इंडिया के उस माहदे को, शर्त को खत्म करके हमारे उन खोए हुए कैदियों को, हमारे इस खोए हुए मुरैल को वापस लाने के लिए। ओके, आफ्टर ईस्ट पाकिस्तान, जब ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, इट बिकम इंडिपेंडेंट कंट्री लाइक द बांग्लादेश, एज यू नो वेरी वेल। अ न्यू एरिया बिगन इन 1971 में, जब बांग्ला अलग हो गया दिसंबर में। एंड व्हेन जुल्फिकार अली भुट्टो एट दैट टाइम केम इनटू द पावर, वो बीइंग एज हमारे मतलब सिलेक्टेड डेमोक्रेटिक हमारे लीडर आए, he felt that despite its CENTO and SETO, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, अंडरलाइन करें, वेरी इंपॉर्टेंट। CENTO, CENTO, SETO, SEATO। At that time, America had not helped Pakistan. अमेरिका ने हेल्प नहीं की, so he announced that Pakistan had withdrawn some other deities. 7, according to an agreement between the both countries in 1973, यानी 71, then 72, 73, ठीक 2 साल बाद, रशिया गिव अ जनरेटर इन इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, हमारे पाकिस्तान के लिए इलेक्ट्रिसिटी को प्रमोट करने के लिए, बिजली के रिसोर्सेज के लिए, हमें थर्मल पावर प्लांट के लिए इनकी तरफ से ऑफर है जो एक्सेप्ट किया गया, जो उन्होंने हमें दिया। द सेम ईयर द स्टील मिल वाज गिवन इन द फाइनल टचेस इन कराची। कराची में स्टील मिल बनाने में रशिया का बहुत लीडिंग रोल रहा है। द मिल कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड इन दिसंबर 1973, इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है 1973 में। Number 8, last PowerPoint here, dear students. In 1988, to resolve the Afghan issue, as you know very well, Afghan tribal जो forces पे जो इन्होंने इनकी रशियन गवर्नमेंट ने या रशिया की स्टेट ने वहाँ पे हमला करवाया। What about that? In 1988, to resolve the Afghan issue, an agreement was decided, which was named the Geneva Pact. Underline ये short question भी आपका बहुत important है। प्लेस का नाम है Geneva Act. In addition to Pakistan and Afghanistan, America and Russia also signed. America and Russia also signed it. इन 3 कंट्रीज ने इसमें साइन किए। According to this pact, इस माहदे के मुताबिक रशिया decided to withdraw
इट्स फोर्सेस विद इन 9 मंथ्स। ये वो टाइम था जब रशिया ने खुद इस चीज़ का डिक्लेयर किया कि मैं अपनी अफवाज को विद इन 9 मंथ्स में बैकआउट कर लूंगा, कॉल बैक करूंगा। Therefore, by the middle of 1989, यानी 1989 के हाफ में, the whole force was withdrawn from Afghanistan. Now the cooperation between both countries ongoing in different ways. अभी भी हमारे अफगानिस्तान के साथ जो करंट इश्यूज अगर आप पढ़ना चाहें येट नाउ वो बहुत अच्छे हैं रशियन स्टेट्स के साथ। आई होप आप लोगों ने इन टॉपिक्स को बड़ा अच्छा पढ़ा होगा। सो गुड बाय, ओके, एंड रीड द चैप्टर वंस अगेन केयरफुली।